Hello friends, I hope you guys are doing good. So after a very long time, we are back again. So first of all, welcome to my channel, The Unaccountant. Today we are going to cover another important IFRS, very different IFRS I would say, which is IAS 41 related to the agriculture. So why we are covering this accounting standard, on a personal note, this AS is very close to my heart since I belong to a farmer family. So agriculture, why? We have to, like in our every AS session, we understand the objective, why the International Accounting Standard Board required to draft a altogether separate IFRS on the agriculture. So the basic agenda was this. For every country, agriculture is one of the important sectors of their GDP or the economy. And number two, it's a very different sector. If I talk about the manufacturing and the service sector or the business generally perform. However, the modus operandi of agriculture sector is altogether different because here they are not the plant and machinery. Plant and machinery are not in their balance sheet. Furniture and fixtures are not in their balance sheet. What comes in the balance sheet is the biological asset. That means living plants, living animals are there. For a farmer, if I own a dairy, so I get the milk from the cows and the buffaloes. So how do I need to account for, or how do I need to disclose the cost or the fair value? We will discuss those cows and buffaloes and their breedings. So this is the modus operandi of agricultural business is very, very, very different from other business areas. So that's why IAS felt that we should draft a separate AS on this particular topic. Okay, so this IAS, if I have to break down its main components of this accounting standard. So all in all, there are basically three parts of the standard. One is the definition part, in which we will get to know what is agricultural activity, what are the biological assets, what are the bearer plants, what is in the scope of this accounting standard. On the second note, we will cover the accounting treatment. How the things are valued or how the things are accounted for. Let's say for the agricultural activities of a dairy farm. So how we account for the biological assets, how do we account for the agricultural produce, and the third part is related to the government grant. So basically, in such type of sector like the agricultural sector, government generally encourages the unorganized sector to come forward and engage in these activities so that there is increased livelihood for them, and as well it will ultimately boost up the economy. And when we prepare the if I talk about the agricultural sector, so when more and more farmers and when more and more people join the agricultural sector, so it becomes very easier for the government also to have a some kind of summary that how many things are accounted for in their balance sheet. So to promote such kind of business, in the nutshell, I can say to promote such kind of business, government provides some kind of subsidy to those people or to the businessmen, I can say, for the accounting aspect. So we will cover up the government grant topic as well. Although some of you might say that it is already covered, this topic is already covered in IAS 20, right? It is covered, but there are some exceptions which are not covered in that standard. So they are completely dealt in our IAS 41. Okay, great. So first of all, agriculture. So ये जो accounting standard है, ये मेरा किस पे apply होता है? So it clearly says वो entities which are engaged in the agricultural activity, कि ये जो accounting standard है मेरा भाई, वो उन entities पे apply होगा जो entity किस चीज़ में engage है मेरी agriculture activities में.
अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट यहाँ से डेफिनेशन आती है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मेरी क्या चीज़ है. सो द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मीन्स मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर नंबर 1 बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. किसका? बायोलॉजिकल एसेट का. किस चीज़ के लिए? ईदर फॉर सेल और गेटिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सो आई कैन से बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल एसेट, सेल या गेटिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सो मैनेजमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइज तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं. अब इसमें एक बात आती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फिशरी फार्मिंग. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि जनरली जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें बिजनेस जो है ज़्यादा डिमांड में है आजकल. सो वहाँ पे क्या है कि पीपल मेक अ वेल और पॉट, सम काइंड ऑफ वेल, एंड वहाँ पे वो मछली पालन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, सो वहाँ पे वो लोग करते हैं. और वहाँ से जो प्रोड्यूस उनको मिलता है, जो फिशेज उनको मिलते हैं, उनको वो सेल करते हैं. तो डेट विल बी कवर्ड अंडर दिस IAS. लेकिन अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दूसरा, कि जो फिशरमैन होते हैं, दे गो टू द सी है एंड दे कैच फ्रेश फिशेज फ्रॉम द ओशन, फ्रॉम द ओपन वाटर. सो वेदर दैट बिजनेस इज इंक्लूडेड ओवर देयर? नो. वाई नो? बिकॉज वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है. वो एक नेचुरल तरीका है कि भाई वो लोग वहाँ ओपन सी में गए और फिशेज को कैच करके ले आए. वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम मैनेजमेंट है पूरी, कि उस चीज़ के लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है. वो तो नेचुरल चीज़ें, हम वहाँ पे जाते हैं, उसको फिशेज को ले आते हैं. लेकिन अगर जैसे कंपनीज हैं, अगर मैं बात करूँ, एक लिस्टेड कंपनी है अवंती फीड्स. सो उसका बिजनेस, मेरा मेन बिजनेस यही है अवंती फीड्स का, कि वो फिशेस को एक्सपोर्ट करते हैं. जो फ्रोजन फिश होती हैं, जो फ्रोजन फिश का जो मीट होता है, सो उसको वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं. तो उस कंपनी के लिए IAS 41 की रिलीवेंस है, ना कि जो फिशरमैन है उनके लिए IAS 41 की रिलीवेंस नहीं है, क्योंकि वो इस स्कोप से ही मेरे यहाँ से बाहर हो गए. ठीक है. ओके. अब बात आती है कि मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर किस चीज़ के लिए? फॉर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि या तो मैं उसमें जो एसेट्स हैं, मेरी बायोलॉजिकल एसेट, उनकी मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, डीजेनरेशन और द प्रोक्रिएशन ऑफ दोज बायोलॉजिकल एसेट. किसकी? बायोलॉजिकल एसेट. बायोलॉजिकल एसेट, एज आई स्टेटेड इन अर्लियर एज वेल, मीन्स लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल. दैट्स इट. कि जीवित पेड़ और जीवित जंतु और जीव, आई कैन से, आर कवर्ड, आर नोन एज बायोलॉजिकल एसेट्स. फॉर सेल, या तो हम उनको सेल करेंगे, या फॉर गेटिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या तो उनको हम सेल करेंगे, अदरवाइज उनसे हम क्या लेंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेंगे. ओके जी, ठीक है. अब बात आती है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है मेरा. सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट. सो लेट्स से वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगेन आई एम टेकिंग. मैं एक फार्मर हूँ, मैंने वीट की फार्मिंग करी है. ठीक है. सो जनरली वीट, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ इंडिया की, सो जनरली इसका टाइम होता है आफ्टर दिवाली, अराउंड अक्टूबर-नवंबर में हम इसको स्टार्ट करते हैं. इसकी पहले इरिगेशन करते हैं, जो कल्टीवेशन होती है, सारी चीज़ें जो होती हैं. दिस इज़ नॉट आवर डिस्कशन पॉइंट ऑफ दिस AS, बट फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट ब्रीफिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज अ ब्रीफ. सो उसमें हम मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर हम उसमें जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसको हम डालते हैं उसके अंदर. ठीक है. उसके बाद उसकी इरिगेशन होती है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इंटरवल्स के बाद, और धीरे धीरे लाइक फरवरी मार्च तक आते आते वो जो गेहूं की फसल है हमारी तैयार हो जाती है. ठीक है. तो जो वो गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है फॉर द कटिंग ऑफ, फॉर चॉपिंग ऑफ, सो वो होता है मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो ये AS बोलता है कि वहाँ तक तो आपको बात जो भी होगी वो किसके अंदर कवर होगी? इस AS के अंदर कवर होगी. अगर आपने वो काट के एक बार कर लिया, उसके लिए हमारे पास दूसरा AS है IAS 2, जो इन्वेंट्री वाला है, वो इन्वेंट्री बन जाएगा. वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में. ठीक है. सो द नटसेल अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सो इट इज नथिंग बट द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट्स. लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल्स एज वेल. इस AS के आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके पास हो सकते हैं. लेट्स से काउ. ठीक है जी.
काउ मेरी क्या है, लिविंग एनिमल है, हाँ है, तो इट्स माई बायोलॉजिकल एसेट। ओके, काउ से हमें क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, तो मिल्क इज माई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ओके, लेकिन जो मिल्क से मैं आइसक्रीम बनाता हूँ, राइट, मिल्क से मैं बटर बनाता हूँ, मिल्क से मैं चीज़ बनाता हूँ, मिल्क से मैं क्लैरिफाइड मिल्क जो होता है, मैं छाछ जिसको बोलते हैं, मैं उसको बनाता हूँ, क्या वो भी मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नो, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, वो मेरा कवर होगा इन्वेंट्री में, वो अलग, उसके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो एएस बोलता है कि भाई जब आपने हार्वेस्ट कर दिया, उस बायोलॉजिकल एसेट से जो प्रोड्यूस मिला उसको आपने हार्वेस्ट कर दिया, बस वहाँ तक आपका ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेफिनेशन में नहीं आता। इसके बाद अगर आप इस पर कुछ और प्रोसेसिंग करके कुछ और इससे फिनिश गुड्स बनाते हैं तो डेट विल नॉट बी ट्रीटेड एज माई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रादर इट विल बी ट्रीटेड एज माई इन्वेंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ओके, अनदर एग्जांपल, मेरे पास लेट्स से एप्पल की ट्रीज हैं, ठीक है, एप्पल के मेरे पास काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, एप्पल ऑर्चिड्स जिसको बोलते हैं, जनरली हिमाचल में, किन्नौर में, यहाँ पे हमें मिलते हैं काफ़ी सारे। तो वहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे मैंने एप्पल को प्लग कर लिया, तो एप्पल ट्री इज माई लिविंग प्लांट, यस, बायोलॉजिकल एसेट। ऑल्दो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो मैं भी आपको बताऊंगा बिहेवियर प्लांट की, कि कौन सी मेरी बायोलॉजिकल एसेट होगी या कौन सी नहीं होगी प्लांट के केस में, बट अभी हम डिस्कस करते हैं, हम कंसिडर करते हैं बायोलॉजिकल एसेट है, ठीक है। उससे जो एप्पल मिला वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हाँ जी है, लेकिन उस एप्पल से जो एप्पल जूस बना रही है कंपनी, लेट्स से डाबर का रियल जूस मेरा बनता है एप्पल जूस, तो उस पे जो एप्पल पे जो आता है वो फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं अपनी फैक्ट्री में, अपने प्लांट में आके, तो वो जो एप्पल जूस है वो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। व्हाट इज माई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द एप्पल विच आर प्लग्ड फ्रॉम द ट्रीज, fresh apples which are plucked from the trees are my agriculture produce and not my apple juice, ठीक है। ओके, अब जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि हर लिविंग प्लांट मेरा बायोलॉजिकल एसेट नहीं होता है, तो उसकी एक एक्सेप्शन है, एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्शन इज द बियर प्लांट। सो द एएस सेज दोज प्लांट्स which meets the definition of बियर प्लांट are not my biological asset and hence not accounted for as per IAS 41, कि भाई जो मेरे प्लांट बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन में उसकी एक्सेप्शन जो है मेरी बियर प्लांट की डेफिनेशन को मीट करते हैं, तो वो उसका ट्रीटमेंट मैं इस एज के अकॉर्डिंग नहीं करूँगा, एज सिंपल एज दैट। अब बात आती है कि भाई ये बियर प्लांट जो हैं वो क्या होते हैं। सो बियर प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ तो नेटसेल में 3 पॉइंट्स पे हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या चीज़ होती है। नंबर 1, ऑब्वियसली बियर प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, नंबर 2, दे आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर देन 1 year और मोर देन 1 season आई कैन से। एंड नंबर 3, दे आर रिमोट चांसेस ऑफ सेलिंग, ठीक है। अगेन हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बियर प्लांट में क्या बोलता है एएस, ऑल्दो ये IAS 41 के अंदर कवर नहीं है डेफिनेशन, ये कवर है डेफिनेशन मेरी जो FA है AS 10 जैसे मेरा हुआ करता था IAS 16, तो जो फिक्स एसेट के अंदर बियर प्लांट पे डिस्कशन है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, ठीक है। सो इट सेज दैट बियर प्लांट आर दोज प्लांट्स विच आर हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस and they are expected to hold that agriculture produce more than 1 year. Let's take an example of mango tree. So एक मैंगो ट्री होता है मेरा, so जनरली सीजन में मेरा आम आता है, मैंगो आता है, एंड ऐसा नहीं है कि एक बार मैंगो ट्री से मेरा मैंगो मैंने प्लग कर लिया उसके बाद वो नेक्स्ट सीजन में मेरे को मैंगो नहीं देगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मेरे को सीजन बाय सीजन, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4, 5, 6 टिल द लाइफ ऑफ दैट ट्री वो मेरे को फ्रूट देगा। तो जो वो फ्रूट है that is my agricultural produce because it is the लेकिन however जो मेरा वो प्लांट है, जो मेरा वो ट्री है, वो मेरा बायोलॉजिकल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑल्दो इट इज हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट it is expected to hold the agriculture produce for more than 1 year and remote chance of sell। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार एक ईयर 1 में उससे मैंगो प्लग कर लिया और उसको मैं सेल कर दिया, नहीं। अगर मैं उसको सेल कर दूंगा
तो it will be the definition of biological asset. Otherwise, it will be treated as my bearer plant and hence will not be considered as biological asset for the purpose of accounting as per IAS 41. I hope यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी. Another example मैं लेता हूँ, let's say banana tree. ठीक है. सो बनाना ट्री में जनरली क्या होता है कि एक बार वहाँ पे बनाना आती हैं उसमें, उसके बाद वो नहीं आती हैं. तो जो बनाना ट्री से मेरे पास बनाना आई, आर माई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? यस, फॉर श्योर दे आर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. लेकिन जो बनाना ट्री है उससे मेरे को नेक्स्ट सीजन में नहीं मिलेगा. उसकी लाइफ प्रूडेंट है तो मैं उसको चॉप ऑफ कर दूंगा. उसके बाद उसको सेल करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो अलग चीज़ है. लेकिन उसका नेक्स्ट सीजन में मेरे को उससे फ्रूट नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मिलेगा, मैं उसको चॉप ऑफ कर देता हूँ. तो वो मेरा बायोलॉजिकल एसेट है. या पोटैटो मेरा ज़मीन के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है, सॉइल के अंदर. मैं उसको प्लग करता हूँ, लाइफ एंड्स. द लाइफ ऑफ द पोटैटो प्लांट एंड्स. सो जिनकी लाइफ प्रूडेंट होती है मेरी, प्रूडेंट ऑब्वियसली सारे प्लांट्स की लाइफ प्रूडेंट होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ IAS 41 जिनकी लाइफ मेरी प्रूडेंट होगी कि मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाला और लाइफ खत्म, इट विल बी माई बायोलॉजिकल एसेट. अदरवाइज it will be treated as my bearer plant, so it will not be considered as my biological asset in my books of accounts. Okay, another example, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं. लेट्स से रबर ट्री. तो रबर ट्री में जो रबर मिलती है, जो लैक्टस मिलता है मेरे को, ऐसे नहीं कि एक बार मेरे को मिला उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो नहीं देगा. वो टिल द लाइफ ऑफ द डेट पर्टिकुलर ट्री वहाँ पे मेरे को मिलेगी. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन कि एक ईयर 1 में मैंने लैक्टस ले लिया, फिर ईयर 2 में भी लूँगा, 3 में भी लूँगा, तो वो मेरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो मेरा होल्ड करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 ईयर. सो हेंस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज माई बायोलॉजिकल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग एज पर IAS 41. आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. ठीक है जी. So friends, this is the one aspect of the definition, general understanding of agricultural activities, what is biological asset, what is agricultural produce, what are the exception of the biological asset, like we discussed related to the bearer plant. Now comes the accounting treatment, like जो भी AS होगा जनरली मेरे को accounting treatment के बारे में ज़रूर बताएगा. So इसमें भी accounting treatment है. तो दो चीज़ों का ट्रीटमेंट होगा इसमें. एक होगा मेरा बायोलॉजिकल एसेट का और दूसरा मेरा क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का. सो द बायोलॉजिकल एसेट में ऑब्वियसली इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन. तो जो हमारे एसेट के जो 3 क्राइटेरिया हैं कि कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर मेजर्ड सब्सटेंशियली एंड कंट्रोल मस्ट बी देयर. सो वो 3 क्राइटेरिया तो मीट होने चाहिए मेरे, तभी मैं अपनी बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड करूँगा. वो एक मेरे यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, चाहे वो एसेट मेरी कोई सी भी एसेट है, वो 3 प्रिंसिपल्स मेरे फुलफिल होंगे तभी मैं अपनी बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे. ठीक है. अब लेट्स से का वेरी बेसिक एग्जांपल का, मैंने बायोलॉजिकल एसेट को एक्वायर किया. सो जब मैं एसेट को एक्वायर करूंगा तो जितने रुपए में मैंने उसको एक्वायर करा है, दैट विल बी माय कॉस्ट. सो व्हाट द अकाउंटिंग एंट्री विल बी सिंपल, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है जी. अब ना इसमें जब हम 11th क्लास में थे तो जनरली एक क्वेश्चन आता था माइंड में जी, मैं हिंदी में बोलूँगा जी, अगर गाय ने बछड़े को जन्म दिया सर तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी. तो हम लोग बड़ा हंसते थे कि ये भी कोई अकाउंटिंग एंट्री वाली पूछने की चीज़ है. अब गाय ने बछड़े को अगर जन्म दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी. तो उसकी अकाउंटिंग जो है हमारी वो IAS 41 में कवर्ड है. वो बताता है हमें कि उसकी अकाउंटिंग एंट्री में कैसे करूँगा. तो व्हाट इट सेज कि अगर वो नेचुरल प्रोसेस से हुआ है, जैसे जो अभी हमारा एग्जांपल था कि काउ गेव अ बर्थ टू अ काफ, सो द अकाउंटिंग एंट्री विल बी माय बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L, राइट. एट अब आती है, अच्छा ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री तो मैंने बुक्स में डाल दी, लेकिन मैं कितने अमाउंट से डालूंगा, क्या मेरे को कॉस्ट पता है इसकी. डू वी नो द कॉस्ट इनकर्ड to have the calf in our farm? No, of course no. It is generated with the natural process. So इसमें हमें कॉस्ट का नहीं पता. So इसमें उन्होंने कहा है, इसने कहा कि इसका फेयर वैल्यू लीजिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कि जो उस काफ की मार्केट में अगर उसको हम सेल करें तो उसकी क्या फेयर वैल्यू है,
और उसमें से हम कोई भी अगर जैसे कुछ कमीशन अगर हमें देना होता है ब्रोकर्स को, तो उसको लेस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बचती है आप उस पे इसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो जनरली जो हमारा जो नॉर्मल जो एएस हैं वो कॉस्ट की बात करते हैं कि आप एक्वायर कर लो, आप उसको मेजर कर लो कितना लगता तो हम कितने पे करते। ये चीज़ इन सब चीज़ों की बात नहीं करता, वो सिंपल कहता है कि फेयर वैल्यू देख लो भाई कितनी आज के टाइम पे, उस पर उसको रिकॉर्ड करो। ओके कूल। देन कम्स द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कि जो गाय थी, जो काऊ थी, काऊ की देख ली हमने अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, फिर जो उसका काफ, जो उसका बछड़ा हुआ, उसकी अकाउंटिंग एंट्री हमने देख ली। अब जो काऊ से हमें मिल्क मिला, राइट, जो काऊ से मिल्क मिला उसकी अकाउंटिंग एंट्री में अपनी बुक्स में क्या करूंगा, वेरी सिंपल अकाउंटिंग एंट्री, इट विल बी माई इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आई कैन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट डेबिट टू P&L and then inventory account debit to agricultural produce. So the net entry would be inventory account debit to P&L at fair value, कि उस दूध की आज की मार्केट वैल्यू क्या है उस पर मैं उसको मेजर करके लेस ऑब्वियसली जो भी कॉस्ट टू सेल है उसको लेस करके मैं जो भी वैल्यू आएगी उस पर मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा। अब इसमें एक बात आती है कि जो IAS 41 है वो मेरा बस यहाँ तक की बात करता है कि आप उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करके उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, एज बाय इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट क्या होगी जो उसकी फेयर वैल्यू है, और इन्वेंट्री जब मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा तो वो मेरा जो एएस इन्वेंट्री के लिए है हम उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज जो भी होगा वो वहाँ पे डिस्कशन होगा, वो इस एएस का पार्ट नहीं है। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा मेरा, वो मेरा फर्स्ट रिकॉग्निशन जो होगा उसका इनिशियल रिकॉग्निशन में एट फेयर वैल्यू करने के बाद उसको मैं अपनी इन्वेंट्री ट्रांसफर कर दूंगा, और इट विल बी दैट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विल बी कंसिडर्ड माई कॉस्ट फॉर द इन्वेंट्री, एंड उसको हम डेल्ट करेंगे जो मेरा वहाँ पे जो एएस है IAS 2 उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे उसको डेल्ट करेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब बात करते हैं उसके सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में मेरा क्या होगा कि एक बार मैंने एसेट को रिकॉग्नाइज कर लिया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और द एक्विजिशन वैल्यू पे, अब ईच बैलेंस शीट डेट पे हमें इसको क्या करना है, रिवैल्यू करना है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि भाई इसमें हमने डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं करी, राइट? तो ऑब्वियसली जो मेरे बायोलॉजिकल एसेट होते हैं उसमें मैं डेप्रिसिएशन में नहीं लगा सकता, तो जो एएस है यहाँ पे वो डेप्रिसिएशन नहीं होती है हमारी, लेकिन क्या होती है, हम ईच बैलेंस शीट डेट पे जो भी एसेट है मेरे पास बायोलॉजिकल एसेट, वी कैलकुलेट द फेयर वैल्यू, वी एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट, और उसके अकॉर्डिंग जो भी अप एंड डाउन होगा मेरा वैल्यू के अंदर उसको मैं अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर करूँगा। कैसे करूँगा? लेट्स से मेरी ईयर 0 पे या ईयर 1 पे मैं आज खड़ा हूँ, आज मेरी बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू है 5000, अब नेक्स्ट ईयर उस एसेट की फेयर वैल्यू थी मार्केट में लेट्स से 4000 की, तो जो 1000 का जो डिफरेंस आया है मैं उसको कहाँ पे चार्ज करूँगा? P&L में, और मेरी अकाउंट क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट। ऑन द अदर हैंड लेट्स से मेरी उस बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई फ्रॉम 5000 टू 8000, सो मैं एंट्री क्या करूँगा? बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो नो टॉक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, ये यहाँ पे कुछ रूल अप्लाई नहीं होंगे, वो मेरा प्लांट एंड मशीनरी F&F में अप्लाई होते हैं भैया, बायोलॉजिकल एसेट में अप्लाई मेरे को आपको नहीं करके चलना है। ठीक है, कल को आप ये चीज़ें आप कुछ पूछने लगोगे भाई डेप्रिसिएशन क्यों नहीं करें, तो डेप्रिसिएशन आप नहीं निकाल सकते हो, आपको यूजफुल लाइफ नहीं पता उस एसेट की क्या होगी, ठीक है ना, आपको उसकी कॉस्ट पता है, इसलिए हम उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। कूल, ठीक है, सो दिस इज माई सेकेंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नाउ द थर्ड पार्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, सो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए तो IAS 20 है हमारे पास, राइट? तो गवर्नमेंट ग्रांट की जरूरत हमें क्यों पड़ी इसे इसमें पढ़ने के लिए? क्योंकि ना IAS 20 मेरा एक जनरलाइज स्टैंडर्ड है, वो मेरे को बताता है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, लेकिन अगर मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो वहाँ पे वो थोड़ा सा एक एक्सेप्शन मैं कहूँगा उसको, देयर इज अ एक्सेप्शन, so that is highlighted in this standard, so we will touch base upon that point as well. So government grant generally can be broadly divided into two parts, where we have to meet certain conditions and other is where no condition criteria are required.
So let's say if there are no condition criterias, then the accounting entry will be simple. If the government has provided me the grant, so obviously my bank account will be debited. So bank account debit to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगा. लेकिन अगर मेरे को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो जो मेरा IAS 20 में जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है आपको, उसको आप डेफर कर दो और उसको आप अमोर्टाइज करो ओवर द इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, कि मैंने जितने एक्सपेंस इनकर करे हैं ईयर वाइज ईयर, और जो ग्रांट आपको मिली है उसको आप उस रेशियो में, लेट्स से 5:7:9 या कुछ भी रेशियो हो सकती है मेरी, इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस आप उसको अमोर्टाइज करो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. लेकिन IAS 40 बोलता है डेफर तो करो टिल द एक्सपायरी ऑफ दोज कंडीशंस, नॉट द कंडीशंस, आई वुड से द टेन्योर. जब हम उन कंडीशंस को मीट कर लेंगे पूरा, उसके बाद जो गवर्नमेंट ग्रांट हमने डेफर करी थी उसको मैं क्या कर लूँगा, अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूँगा बाय हिटिंग माई P&L अकाउंट. ठीक है जी. सो वही मैं कहता हूँ कि ग्रांट विल बी डेफर्ड बट इट विल बी ट्रांसफर टू P&L आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल कंडीशन, नॉट बिफोर डैट. पहले जो IAS 20 में तो हम पहले इसको ट्रांसफर कर दिया करते थे P&L में इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस में आपको नहीं करना है, कि जब आपकी कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाए आपको उसको तभी करना है. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. ओके, सो this is the basic understanding of this accounting standard in a very quick manner, but with some real life examples which I discussed with you. I hope you guys will find it useful for your knowledge, and I'm sure this particular accounting entry is very interesting. of जो मैं डिस्कस कर रहा था कि कुछ अगर इंक्रीज होता है मेरा बायोलॉजिकल एसेट में ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेस, तो ये एक अकाउंटिंग एंट्री है. बाकी डेफिनेशंस एंड यस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ बीयर प्लांट, दे आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग और सम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स विच वी वर्क अपॉन. सो आई होप यू गाइज find it useful, and as always, in case of any queries or clarification, please feel free to reach out to me at my mail ID, which is catarunbhardwaj99@gmail.com. And I hope you all are very good health and stay safe. Bye.